Yeah, hello students and the viewers. Today our topic is adverb clause. In the previous class we already completed noun clause and adjective clause. I already taught you earlier, I told you earlier the three clauses are there, that is your noun clause, adjective clause and adverb clause. So what are these clauses? Where do we get these clauses? It is important to understand. These clauses we get in complex sentences, right? In a complex sentence we get a clause. That clause may be a noun clause, adjective clause or adverb clause. Three clauses are there. So we have to understand these clauses. If we understand the clauses, then what will happen? We can easily convert into, after knowing the technique, thereafter we can convert into adverb phrases, noun phrases and adjective phrases. These are the three phrases. All the clauses can be converted into phrases. So that is our process. As I taught you, two noun clause and adjective clause. Now see what is adverb clause. First of all, we have to understand adverb clause. And in a clause, wherever there is a clause means three things are there. In a clause, what will be there? There will be a conjunction, subordinating conjunction, a conjunction will be there, then a subject will be there, then main verb. These three things will be there. Then it is a clause. That will be in subordinating part. See the sentence now. First of all, you observe the sentence. An example. He will do nothing. वो कुछ नहीं करेगा. This is an example sentence. He will do nothing. Very simple to understand. He will do nothing. This is a simple sentence and it is also called the principal clause. Principal clause. Okay, thereafter we can put a full stop, but we didn't do. We didn't put the full stop. हमने क्या किया, इसको एक conditional clause से जोड़ दिया. If is a conditional clause. He will do nothing. वो कुछ नहीं करेगा. Try to understand in Hindi. If you go out, suppose you give some task to someone. आपका असिस्टेंट को कुछ काम दिया है और मैं बता रहा हूँ कि वो नहीं, आई नो हिम, ही डजंट डू, ही इज़ नॉट सो एक्टिव और ही इज़ नॉट सो ट्रस्टवर्दी दैट इन योर एब्सेंस ही विल डू. तो आई एम टेलिंग कि ही विल डू नथिंग, वो कुछ नहीं करेगा इफ़ यू गो आउट. नाउ हमने क्या किया, हमने कंडीशनल क्लॉज लागू कर दिया. यहाँ पे कंडीशनल क्या है, अगर कंडीशन, इफ, दैट इज ए conjunction, subordinating conjunction. You is the subject, go is main verb. So three things we got here. If you go out, he will do nothing if you go out. अगर आप चले जाते हो तो वो कुछ नहीं करेगा. Now see this clause we can remove totally. Okay, this conditional clause, if नहीं रहेगा, ना you ना go, all these three things we can remove. That is the process to convert a clause into a phrase. Now phrase is what? देखो, nothing is there, no conjunction, in your absence. He will do nothing in your absence. यहाँ पे absence नाम के कोई शब्द है नहीं. If you go out, तो go out मतलब आप absent रहोगे वहाँ पे. तो आप इसके कहने मतलब he will do nothing if you go out. तो he will do nothing in your absence. तो हमने क्या किया, यहाँ पे कंजंक्शन को हटा दिया, कंडीशन नहीं है बिल्कुल, और यू को हमने योर में बदल दिया. दिस इज यू इज योर सब्जेक्ट, इट्स अ प्रोनाउन. नाउ वी कन्वर्ट इट इनटू एन एडजेक्टिव, दैट इज कॉल्ड पॉजेसिव एडजेक्टिव. इस एडजेक्टिव के बाद क्या हुआ, एब्सेंस इज ए नाउन वर्ड. ओके, एब्सेंस, एब्सेंट इज एडजेक्टिव बट एब्सेंस इज नाउन. तो इन योर, दैट इज आवर प्रोसेस. ये प्रक्रिया है, प्रोसेस है. इन दिस वे वी कैन कन्वर्ट इनटू a phrase. Now phrase sentences are more impressive than your clause sentences. So now he will do nothing in your absence. Okay, more you can do some more sentences so that you can understand it easily. Another sentence you see, second sentence, don't go means you don't go. Don't go is an imperative sentence. Imperative sentence means order, advice, suggestion, all these things are there in imperative sentences. So I am telling don't go. So maybe an advice or order. Please don't go. अगर मैं please लगाता हूँ then it is request. Please don't go means you don't go.
here is a condition again, if it rains. So if it rains, if is what? Clause conjunction, subordinating conjunction. That subordinating conjunction के साथ क्या आ गया? It is the pronoun. If it rains, three things: conjunction, subject, main verb. Rains is your main verb here. Rains. If it rains, अगर बारिश होती है तो ACS form of the verb, simple present tense का अगर देखा जाए टेंस ऑब्जर्व करो, इट है थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन इट. ओके, ही शी इट के साथ ACS फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, इसे आई यू नो इट. इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है तो आप मत जाओ, डोंट गो. सो वी कैन मेक द सेंटेंस इन दिस वे, और वी कैन रिमूव द क्लॉज. हम रिमूव क्लॉज को, इसको यूज नहीं करेंगे, इफ इट रेन्स को हम यूज नहीं करेंगे. तो हाउ कैन, देन द सेंस विल बी सेम. इसे हम सेम सेंस देना है, हमने क्लॉज को हटा के फ्रेज में बदलना है. नाउ सी, यू डोंट गो इन रेन. इन जो ये जो रेन है और ये भी रेन है, इन रेनफॉल, रेन. नाउ इट इज नाउन. ये क्या, ये जो रेन है ये क्या है? डोंट गो इन रेन, बारिश में मत जाओ. जैसे देखो, ये समझना पड़ेगा कि एक नाउन वर्ड एक वर्ब वर्ड फॉर्म में भी यूज होता है. ओके, इट इज रेनिंग, नाउ इट इज वर्ब. नाउ इट इज रेनिंग, रेन, रेन्स, रेन, रेनिंग, रेन्ड. तो नाउन कैन बी ए वर्ब ऑल्सो, बट हियर इट इज वर्ब नहीं है. वर्ब तो यही है, डोंट गो. एक सेंटेंस में दो दो वर्ब नहीं होता है, फाइनाइट वर्ब. सो इन रेन, बारिश में मत जाओ. तो ये जो है ये नाउन है. तो ये नाउन के ये है टोटली, इन रेन इज योर एडवर्ब, एडवर्ब फ्रेज. ये है एडवर्ब फ्रेज, जो वर्ब को क्वालिफाई करने वाला शब्द होता है, से पार्ट होता है, उसे कहते हैं फ्रेज. तो वर्ब क्या है? गो है, तो गो को क्वालिफाई कर दिया. सो ये शॉर्टकट भी हो गया एंड इट इज इंप्रेसिव. इन दिस वे वी मेक फ्रेज सेंटेंसेस. ओके, नेक्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. You should understand, the thing is that what? Noun को आप, all the words are, suppose water. Water is noun. Water is verb also. Water is noun. Water is verb. The gardener is giving water to the plants. Now water क्या है? Noun है. Giving verb हो गया. Now if you say the gardener is watering the plants, now the water को हमने verb के फॉर्म में बदल दिया. Similarly यहाँ पर हमने क्या किया? ये जो रेन्स को, ये जो वर्ब है, इसको हमने यहाँ पे नाउन फॉर्म में यूज़ किया. इन रेन, बारिश में, ये नाउन है. ओके, नाउ ये जो इन दिस वे वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस एंड यू कैन मेक द सेंटेंसेस इफ यू अंडरस्टैंड. देन कम्स योर थर्ड सेंटेंस. यू सी, यू मे स्पीक. ए सेंटेंस इज देयर, यू मे स्पीक, आप बोल सकते हो. देयर आफ्टर आई कैन गिव यू द ऑप्शन, वॉट एवर यू लाइक. आप बोल सकते हो जो आपको मन चाहे, जो भी आपको पसंद है उसे आप बोल सकते हो. तो व्हाट एवर यू मे स्पीक, इट इज ए प्रिंसिपल क्लॉज एंड मेन सिंपल सेंटेंस. इसके सामने हमने क्या कर दिया? व्हाट एवर कंजंक्शन से जोड़ दिया. इट इज ए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. ओके, और दिस इज टोटल सेंटेंस इज ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. हमने व्हाट एवर यू लाइक, यू सी, सब कंजंक्शन, सब्जेक्ट, मेन वर्ब. व्हाट एवर इज सब्जेक्ट, यू व्हाट एवर इज कंजंक्शन, यू सब्जेक्ट, लाइक इज मेन वर्ब. हमने क्या किया? इसको फ्रेज में बदल देते हैं. देखो, यू मे स्पीक. ओके, आर यू गेटिंग? यू मे स्पीक, आप बोल सकते हो एज पर योर चॉइस. आपके चॉइस के अनुसार, आपके चॉइस के हिसाब से आप बोल सकते हो. तो हमने कंजंक्शन को हटाया. नो कंजंक्शन, एज पर इज नॉट योर कंजंक्शन. एज पर योर चॉइस इज ए फ्रेज. नाउ आपके चॉइस, लाइकिंग भी बोल सकते हैं, एज पर योर लाइकिंग. लाइक को अपने नाउन में बदल दिया, लाइकिंग. आपके लाइकिंग के हिसाब से. यू को हमने योर में बदल दिया. इट इज एन एडजेक्टिव नाउ, पॉजेसिव एडजेक्टिव. और यू यहाँ पे एक प्रोनाउन था. तो ये जो टेक्निक है, हमें नाउन को एडजेक्टिव को, नाउन को एडजेक्टिव में बदलना, ऑल दिस प्रक्रिया को समझना चाहिए हमें. ओके, सो मेनी वर्ड्स आर देयर. दिस को वर्ड साइकिलिंग को अगर समझोगे ठीक से, वर्ड साइकिलिंग टेक्निक, देन इट विल बी इजियर टू डू ऑल दिस. ओके, देन क्लॉज जरूरत नहीं है हमें. ओके, वी कैन इजीली कन्वर्ट द क्लॉज सेंटेंसेस इनटू फ्रेजेस. दैट्स ए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू हैव द प्रैक्टिस ऑफ इट. जस्ट ए मोमेंट.